Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1, and in today's video I will explain you worksheet 3. So, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 28 October 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and in today's worksheet I will explain you lesson 6B, which is a poem, and the name of the poem is Mystery of the Talking Fan, means बात करने वाले पंखे का रहस्य, and the poet of the poem is Maud Rubin, who has written the poem. So lesson number and lesson name is mandatory to mention on the copies. Now let's come back to the work. Today first of all I will explain you word meaning. So the first word is chatter. Chatter means होता है, in Hindi we can say बक बक करना. So the meaning is to talk for a long time about unimportant things, means लंबे समय तक अनइम्पॉर्टेंट यानी जो चीज़ें ज़रूरी ना हो उनके बारे में बात करते रहना, दैट इज चैटर. सेकेंड इज मिस्ट्री. इन हिंदी वी से रहस्य. द मीनिंग इज थिंग्स दैट कुड नॉट बी अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड. ऐसी चीज़ें जो समझी ना जा सकें और जिन्हें एक्सप्लेन ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मिस्ट्री. ऑन थर्ड नंबर इट इज़ स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मीन्स होता है खराब कर देना, बिगड़ जाना. सो द मीनिंग इज टू ruin समथिंग, किसी चीज़ को बेकार कर देना. On fourth number, the word is whirling. Whirling is a type of a sound. So it is quick and round movement of something. Means जल्दी जल्दी और गोल गोल movement जो होते हैं उनका जो sound होता है घूमने का, that is called whirling. On fifth number it is hear, and the meaning is to receive sound with your ear. Means अपने कानों से जो आप sound receive करते हैं, that is called hear, means सुनना. So next one is make sentences with these words by using the model need to. Today we will make the sentences by using the model need to. Some words are given and we will use need to with these words to make sentences. So first of all let's see the note. What is the use of need to? So it is used to show need. When we have to show the need, किसी चीज़ की ज़रूरत दिखानी होती है, then we use need to. So let's see the sentences. The first word is speak. So the sentence is you need to speak English fluently. तुम्हें अंग्रेजी fluently means फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है. Second is get. Get means होता है लेना, प्राप्त करना. So the sentence is you need to go home and get some rest. तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम करने की या आराम लेने की ज़रूरत है. Next word is look, and the sentence is does he need someone to look after his house? क्या उसे किसी की ज़रूरत है अपने घर की देखभाल करने के लिए. So here in all the sentences need to is showing the need. In the first sentence someone is needed to speak English fluently. In second sentence someone is needed to go home and take rest. In third sentence someone needs a person to look after his house. So in all the sentences need to is showing the need. Next word is call, and the sentence is they need not to call her. So here we are making the negative sentence. तो उन्हें उसे means किसी लड़की को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज वेट. आई नीड नॉट टू वेट एनी लॉन्गर. मुझे लंबे समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. सिक्स्थ वर्ड इज़ लर्न, एंड द सेंटेंस इज डू दे नीड टू लर्न ऑल लेसन्स. क्या उन्हें सारे लेसन्स याद करने की ज़रूरत है. So here we have made the sentences with need to, and in all the sentences need to is showing need. So need to एक मॉडल होता है जिसका यूज़ हम need को शो करने के लिए करते हैं. Now let's see the question answers of this poem. Question number 1 is what do you think the talking fan was demanding? आप क्या सोचते हैं कि talking fan किस बात के बारे में डिमांड कर रहा था. द आंसर इज द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द पोएट टू टॉक टू हिम. सो जो टॉकिंग फैन था वो पोएट यानी जो राइटर है, पोएट है, कविता को लिखने वाला, उनसे डिमांड कर रहा था कि वो उससे बात करें. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन. किस तरीके से जो एक इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो मैनेज करता है बहुत सारी हवा फेंकना जब वो स्विच ऑन होता है. सो द आंसर इज एन इलेक्ट्रिक फ़ैन हैज़ अ स्मॉल विरलिंग मोटर. एक जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उसकी एक स्मॉल छोटी सी विरलिंग मीन्स घूमने वाली मोटर होती है. एंड 3 ब्लेड्स, उसके साथ ही 3 ब्लेड्स होते हैं. व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन, जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं, द मोटर व्हील्स, जो मोटर होती है वो घूमती है, एंड द ब्लेड्स मूव, और जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं.
विच कट द रूम एयर एंड थ्रो इट इन ऑल द डायरेक्शंस। और जब वो ब्लेड मूव करते हैं सो वो जो रूम एयर प्रेजेंट होती है इन द रूम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं और उसे सारी डायरेक्शंस में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सो द फर्स्ट वन इज द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, जो चैटर है, जो बकबक है फैन की, वो इलेक्ट्रिकल है। क्यों? बिकॉज द फैंस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड दे प्रोड्यूस नॉइज ओनली व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। जो चैटर है फैन की वो इलेक्ट्रिकल है बिकॉज जो फैंस होते हैं वो किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, और वो नॉइज़ केवल तभी प्रोड्यूस करते हैं जब वो स्विच ऑन होते हैं। सो दैट्स वाई द चैटर ऑफ द फैन इज इलेक्ट्रिकल। सेकेंड इज इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, ये रहस्यमय है क्योंकि इट कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस द सेम साउंड जस्ट लाइक टॉकिंग इन सम मिस्टीरियस कोड लैंग्वेज। ये जो फ़ैन होते हैं ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं सेम साउंड, एक ही तरीके का साउंड, जस्ट लाइक टॉकिंग इन सम मिस्टीरियस कोड लैंग्वेज। सो पोएट के अनुसार ये जो कंटिन्यूसली जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनको पोएट को लगता है कि ये किसी मिस्टीरियस रहस्यमय कोड लैंग्वेज में पूरा टाइम बात करते रहते हैं। So that is the worksheet related to lesson 6B. Today we have completed the whole lesson, and from tomorrow we will start a new lesson. So I hope all the things are clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.